हेलो। তাহলে अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2002 का सम है कैश फ्लो। ठीक है, তো আগে আমরা কোশ্চেনটা রিড করব ভালো করে, তারপরে আমরা স্টার্ট করব। কোশ্চেন রিড করতে গিয়ে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টস আছে সেগুলোও দেখে নাও, তারপর আমরা সামটাকে সলভ। তো লেটস স্টার্ট। সব থেকে স্টার্টিং है, আমাদেরকে দেখতে হবে। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। ओके, नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 4 लाख, करंट ईयर 5 लाख। तार माने इसका मतलब है हमने शेयर इशू किया है। ओके, प्लस साइन। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, সেটাও রাইজ করেছে। ওকে, লং টার্ম লোন previously it was 15 lakh, now it is 10 lakh। তার মানে I have redeemed, not redeemed, exactly repaid, repayment of long term borrowings। ओके, ट्रेड पेएबल रिड्यूस হয়েছে, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल में माइनस होगा। Provision for tax, opening and closing is provided and no information is there. In additional information, there is no other adjustment. In that sense, it means that trade payable, it means provision for tax, for provision for tax कोई लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं से ओपनिंग और क्लोजिंग से डिटरमाइन कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। The opening value will be used as tax paid, it means 2,80,000, and the closing value will be provision made during the year. Plant and equipment value was 45 lakh, now it is 52 lakh. Along with that, some additional information is there, so we will prepare ledger accounts for plant and machine, property, plant, equipment। और एक मिस्टेक हो गया है, वो ये है, हम नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ठीक से पढ़े नहीं है। वहां पे आप पढ़ने पे थोड़ा सा दिख रहा है कि इनकम टैक्स is paid during the year 3,20,000। It means we have to prepare ledger account for provision for taxation। Okay, now inventory value rise हुआ है, तो changes in working capital में इसको हम लोग करेंगे माइनस। ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू फॉल हुआ है, इसको हम लोग करेंगे प्लस। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो लास्ट में यूज होगा जब हम लोग कैश फ्लो को क्लोज करेंगे। सो लेजर बोले तो बनेगा दो लेजर, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनेगा और एक लेजर बनेगा इनकम प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट। तो पहले दो लेजर अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। चलिए आइए, वर्किंग नोट पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सम करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट एंड देन वी विल प्रिपेयर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। T format। Now buy balance BD to balance CD। Okay. Now opening provision is 2,80,000 and the closing is 3,50,000। Okay. Opening 2,80,000
closing 3,50,000. Okay. Now come to this portion which says that during the year the company has paid income tax of 3,20,000. अब ध्यान से देखिए क्योंकि एडजस्टमेंट में दे दिया है टैक्स पेड, it means they have provided you the amount which you have paid during the year. So we will write to bank tax paid. Now how much will be tax paid? 3,20,000. So let's write it down over here. 3,20,000. It means our balancing figure will be. It means our balancing figure will be tax provided during the year. Our balancing figure will be tax provided during the year. तो कितना होगा देख लेते हैं. This comes to 6,70,000 minus 2,80,000, 3,90,000 by statement of profit and loss. So this is the ledger account for provision for taxation. Next, we will prepare ledger account for property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Property, স্যার plant বলছি and একটু ওইটা জয়েন করিয়ে দাও। huh? স্যার দেখো আর একটা জয়েন ইন আসতো, ওটা একটু জয়েন করিয়ে দাও। Property, plant and equipment. Now opening balance, to balance BD. Now what is the opening for property, plant and equipment? The opening balance is 45 lakh and the closing balance is 52 lakh. So the opening balance is 45 lakh and the closing balance is 52 lakh. Now let us come to the additional information. क्या दिया हुआ additional information? सबसे पहला depreciation on plant equipment is given, that is 5 lakh during the year. By depreciation, and the depreciation is 5 lakh. And nothing more information is provided कि purchase हुआ है या sale हुआ है, ऐसा कोई भी information provided नहीं. So in this case, we can figure out that the credit side is greater. So like 10,20,000 here, and the balancing figure will be to bank account purchase. That will be the balancing figure. And the balancing figure will be 10,20,000 minus 4,50,000. That comes to 5,70,000. So these are the two ledger accounts which were required. हम लोगों ने उसको बना लिया. Now we will do one more calculation and we will straight away start with our sum, that is net profit before tax. Let me do it here. Net profit before tax. First,
balance that is surplus in statement of profit and loss, open bracket, closing minus O. Now look at the value of statement of profit and loss. Closing is 21 lakh, opening is 15 lakh. That comes to 6 lakh. Okay. Now we will add certain items. First, transfer to general reserve or reserve. वो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, स्किप कर देंगे उसको. Next, dividend paid, that is given in the question. Look, it's given. Dividend 4 lakh is paid. Dividend 4 lakh is paid. So we'll write over here dividend paid 4 lakh. Next we have provision for taxation made during the year. Now we have prepared the ledger account for provision for taxation. This is the ledger account, and look at the provision made, 3,90,000. So we'll put that value over here, 3,90,000. That is provision for taxation. और इसमें और एक आइटम आता है, वो हो गया प्रपोज डिविडेंड. दैट इज नॉट गिवन, एक ही लाइन दिया हुआ है डिविडेंड पेड, तो उसको यूज कर लेंगे. सो नाउ व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? इट कम्स टू 13,90,000. So this is our net profit before tax. Now let's start straight away with the cash flow format. सीधे सम्स में आ जाता है. चलिए सीधा सम में आते हैं. तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहला कंपनी का नाम लिखा जाता है. इस कंपनी का नाम है पिक्सेल लिमिटेड. पिक्सेल लिमिटेड. कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2022. Two columns. Roman 1. Let's start. Cash flow from operating. So now cash flow from operating activities. Let's start. The first thing we are going to write over here, net profit before tax. So we have already done a working note on it. That is this one. This is working note 1. This is our working note 1. So the value comes to 13,90,000. Straight away बाहर भेज दो. 13,90,000. Next. Adjustment for non-cash and non-operating items. Let's start. Few things which are added first. Then there are certain items which are subtracted. The first thing that comes over here is depreciation. और हम लोग को पता है क्वेश्चन में depreciation provide किया हुआ है. So we will write depreciation on property
plant and equipment. Now, how much is the depreciation? We have prepared ledger accounts for it. Let's see. The amount of depreciation is 5 lakh. So 5 lakh. Now, next thing, this is written over here is amortization of intangible assets. There are no intangible assets in the questions. Forget about it. The next thing is interest. Interest paid on long and short term borrowing. Now, here is a long term borrowing, that is term loan. So we can write it like this: interest on term loan. Now, how much is the interest? It's given in adjustment. The interest for term loan is 1,80,000. The interest for term loan is 1,80,000. It's given in the question. So 1,80,000. नाउ जैसे जैसे हम आइटम लिखते जाएंगे ये भी आपको बताते जाएंगे कि क्यों ये माइनस हो रहा है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग आइटम बट इट इज अ नॉन कैश आइटम, इसीलिए इसको हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा है मतलब जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे तो माइनस किए थे, और अब जब पता चला कि ये नॉन कैश है तो इसको नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ देते हैं ताकि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, नॉलिफाइड हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इसका। इसको ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेटिंग में आता है, इसको ऐड करने का मतलब ये है कि इसको ऑपरेटिंग से एक्सक्लूड किया जा रहा है, बिकॉज जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला था तो आपने माइनस कर दिया है, वापस से सब्ट्रैक्ट नहीं करने का, सिचुएशन को ठीक करने के लिए ऐड कर देने का। ओके, दिस इज द सेकेंड आइटम। थर्ड, हम ओरली बोलते जाएंगे, आप लोग देखिए है कि नहीं, हम बहुत सारा आइटम है कि नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंस, कुछ भी नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन तो यहाँ पे डिवेंचर है ही नहीं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का भी कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसका लेजर बनाया गया है बट वहां पे कोई सेल नहीं हुआ है तो लॉस ऑन सेल भी नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंस भी नहीं है, अंडर राइटिंग कमीशन भी नहीं है, साथ ही साथ इस पे आपका डिक्रीज इन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ वो भी नहीं है। इसका मतलब एड में बस यही दो आइटम अवेलेबल आपके पास था जो आपने कर दिया। अब आते हैं लेस में। लेस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि लेस के लिए जो भी रेलेवेंट आइटम चाहिए होता है वो यहाँ पे है नहीं। क्या क्या था हम लोग ने डिस्कस किया था? डिविडेंड इनकम था, रेंट इनकम था, इंटरेस्ट इनकम था, फिर आपका गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या किसी तरीके का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल एसेट्स को बेच के जो गेन हुआ वो आता है लेस पे। और क्या आता है लेस पे? डिक्रीज इन पीवीडीडी। तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अवेलेबल है ही नहीं, तो जो नहीं है उसके बारे में अपने को सोचना नहीं है, अपने को आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाना है मतलब इन दोनों को ऐड करके बाहर भेज देते हैं। सो 5 लाख एंड 1,80,000, दैट कम्स टू 6,80,000। 6,80,000। नाउ लेट्स सी, 6,80,000 प्लस 13,90,000, 13,90,000 plus 6,80,000. That comes to 20,70,000. That comes to 20,70,000. Now what is this? ये क्या निकला? ये निकला आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल। यू कैन राइट ऑल्सो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग ऐड करते हैं और कुछ चीजों को हम लोग लेस करते हैं। देखिए, करंट लाइबिलिटी वाला सेक्शन और करंट एसेट वाला सेक्शन देखिए हमने पहले से ही ऐड लेस करके रखा है। ट्रेड पेएबल लेस होगा, इन्वेंट्री लेस होगा, ट्रेड रिसीवेबल ऐड होगा, तो पहले ऐड लिखिए। ट्रेड रिसीवेबल ऐड क्यों हो रहा है? डिक्रीज इन ट्रेड
receivable. Decrease in trade receivable. Now it comes to 4 lakh. Next, less. Increase in inventory 2 lakh. ये माइनस होगा. नेक्स्ट, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल. ठीक है, कितना है देखिए, 3 लाख. तो यहाँ का रूल क्या था बेटा जी, पहले फिर से बता देते एक बार ताकि आपको समझ में आ सके क्या क्यों प्लस माइनस क्या हुआ. यहाँ पे रूल था, करंट एसेट बढ़ेगा तो जितने से बढ़ेगा, अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो जितने से बढ़ेगा उसको हम लोग कर देंगे लेस. करंट एसेट अगर घटेगा तो जितने से घटेगा उसको हम लोग कर देंगे ऐड. करंट लाइबिलिटी जितने से बढ़ेगा उसको हम लोग करेंगे प्लस. करंट लाइबिलिटी जितने से घटेगा उसको हम लोग करेंगे माइनस. तो ये सिचुएशन है. तो इसी हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल चेक करिए, उसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुआ है, फिर भी उसको हमने प्लस किया. ठीक है, नहीं, ट्रेड रिसीवेबल का जो वैल्यू है, हाँ वो रिड्यूस हुआ है तो इसीलिए हमने उसको प्लस किया. इन्वेंट्री का वैल्यू चेक करिए, राइज हुआ है तो उसको हमने माइनस किया. और ट्रेड पेएबल का वैल्यू देखिए डिक्रीज हुआ है तो इसलिए हमने उसको माइनस किया. अब चलिए इन चीजों को सॉल्व करते हैं. 12 लाख, नॉट 12 लाख एग्जैक्टली, 2 लाख सॉरी. माइनस 2 लाख, माइनस 3 लाख, माइनस 5 लाख, प्लस 4 लाख इज माइनस 1 लाख. 19,70,000. ये क्या निकला आपका, ये निकल करके आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. नाउ लेस टैक्स पेड. अब ड्यूरिंग द ईयर चेक करिए टैक्स पेड कितना है. ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्स पेड होगा वो अपने को उस लेजर से पता चलेगा जो हम लोगों ने नीचे बनाया था. ये देखिए टैक्स पेड कितना है, 3,20,000. आपको दिखा शायद, टैक्स पेड है 3,20,000. सो 3,20,000 that comes to 16,50,000. तो ये क्या निकल करके आया बेटा, प्लस में आया आंसर. तो बाबू इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, क्या बोल के, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ खत्म हुआ. नाउ रोमन 2, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चलिए सॉरी नॉट फाइनेंसिंग, सॉरी 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 सॉरी, नॉट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देयर आर अगेन टू सेट्स ऑफ आइटम, few of them are added while rest are subtracted. Now what are the items which are added, किसी भी तरीके का tangible, intangible, आई रिपीट, किसी भी तरीके का tangible हो, intangible हो
नॉन करेंट टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, इन चीजों का अगर सेल होता है तो पैसा इनफ्लो होता है, तो इन सब चीजों को हम लोग ऐड करेंगे। साथ ही साथ ऐड करेंगे डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम। डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, इन सब चीजों को ऐड किया जाता है। और जब हम लोग टैंजेबल, इंटैंजेबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो उन सब चीजों को हम लोग माइनस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोगों ने बनाया है और वहां पे एक ही परचेस है जो कि आउटफ्लो ऑफ कैश है। एक ही परचेस है जो कि आउटफ्लो ऑफ कैश है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में और किसी भी तरीके का सेल वगैरह कुछ भी क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। सो चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें एक गलती हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसरीड कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का जो ओपनिंग वैल्यू है वो 45 लाख है, वो नहीं दिखा अपने को। हम लोगों ने 4,50,000 ले लिया। और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 52 लाख, वो भी हम लोगों को नहीं दिखा था। हम लोगों ने गलती से उसका रॉन्ग अमाउंट ले लिया। चलिए इसको ठीक कर देते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, अभी ठीक कर देते हैं। चलिए, तो 5 लाख और 52 लाख, दैट इज अप्रोक्सीमेट, नहीं एक्यूरेटली 57 लाख। ओके, now over here also 57 lakh. Now 57 lakh minus 4,50,000. I repeat, 57 lakh minus 4 lakh नहीं, minus 45 lakh. That comes to around 12 lakh. हाँ, सही है। तो अब आप अपने क्या लिखेंगे? परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज 12 लाख। अब ये माइनस में आया है तो इसको माइनस में रखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वापस से कुछ चीजों को हम लोग प्लस करते हैं, कुछ चीजों को हम लोग माइनस करते हैं। चलिए, प्लस वाला पहले आइटम स्टडी कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनिए। प्लस में हम लोग क्या क्या करते हैं? चलिए थोड़ा सा ऊपर बता देते हैं प्लस में क्या क्या आता है। अगर शेयर इशू हो रहा है, इशू ऑफ शेयर, तो वो प्लस है। डिवेंचर इशू हुआ तो प्लस हुआ। लोन वगैरह ले लिए तो प्लस हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम राइज हुआ तो प्लस होगा। ये सारा आइटम फाइनेंसिंग में प्लस होता है। अब माइनस का बहुत बड़ा लिस्ट है। देखिए क्या लिस्ट है। अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ तो माइनस होगा। इक्विटी शेयर जो होता है वो बाईबैक होता है। चलिए, लोन को हम लोग रिपे करते हैं तो वो माइनस होगा। वापस से इंटरेस्ट अगर किसी लोन पे करते हैं तो वो माइनस होगा। अंडर राइटिंग कमीशन फॉर श्योर माइनस होगा। शेयर इशू एक्सपेंस फॉर श्योर माइनस होगा। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो माइनस होगा। डिस्काउंट ऑन इशू जो है वापस से वो भी माइनस होगा। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर डेटा ढूंढे तो यहाँ पे एक ही चीज आपको दिखेगा, वो है इशू ऑफ इक्विटी शेयर। और आपको दिखेगा रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन जो कि माइनस होगा। अच्छा, और आपको दिखेगा इंटरेस्ट पेड, याद है ये इंटरेस्ट पेड जो ऑपरेटिंग में आता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए इन तीनों चीजों को नीचे उतारते हैं। सबसे पहला ऐड में आएगा। ऐड पर सबसे पहला आएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। चेक करिए कितना शेयर इशू किए हैं। 10 लाख।
पहले 40 लाख था, अभी 50 लाख हुआ, इसका मतलब इशू हुआ है 10 लाख। ओके, नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन का कुछ पोर्शन हम लोगों ने पे कर दिया, और कुछ पोर्शन कितना है, 5 लाख, तो वो -5 लाख होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन। कितना इंटरेस्ट पे किया टर्म लोन पे, चेक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,80,000। 3 आइटम आ गया, क्या क्या है, फिर से रिपीट करते हैं। 10 लाख is issue of equity share. Repayment of loan is 5 lakh. Repayment of loan is 5 lakh. No, 5 lakh नहीं है। रीपेमेंट ऑफ लोन चेक करते कितना है, एक बार चेक कर लेते। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन था 15 लाख, अब हो गया 10 लाख। ओके, हाँ 5 लाख, ठीक है, ठीक है, 5 लाख है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पे और एक आइटम आएगा जो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जिसको लिखे थे, वो है डिविडेंड पेड। याद है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोगों ने ऐड किया था डिविडेंड पेड 4 लाख। तो चलिए, यहाँ पे डिविडेंड पेड आएगा 4 लाख। नाउ लेट्स सी, 4 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 1,80,000, 10,80,000, 10,80,000 minus 10,80,000 plus 10 lakh is minus 80,000, minus 80,000. We'll write it here. क्या बोल के लिखेंगे, नेट कैश used in financing activities. Okay, now we will add all the three activities. Now what are the three activities? Let's see. आंसर क्या क्या आया है। एक का आया, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, एक का आया है 16,50,000 पॉजिटिव में है। दूसरा वाला है माइनस में, -12 लाख। और तीसरा वाला भी माइनस में है, दैट इज -80,000। चलिए, तीनों का कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, एक्सक्यूज मी, 3,70,000। 3,70,000। और ये जो आया है ये नेगेटिव में, ये जो आया है ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव में नहीं है, प्लस में है, क्योंकि 16,50,000 प्लस है, बाकी सारा नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा 3,70,000। सो लेट्स सी, नेट इंक्रीज इन net increase in cash and bank balance 1 plus 2 plus 3, how much, 1 plus 2 plus 3, ये आएगा आपका 3,70,000। now add opening cash and bank balance, go to the balance sheet, मतलब जो क्वेश्चन है वहां जाइए। ये देखिए ओपनिंग का वैल्यू कितना था, ओपनिंग का वैल्यू था 2,80,000। चलिए इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, 3,70,000 plus 2,80,000, that comes to 6,50,000। और ये क्या बोल के आएगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस।
और ये 6,50,000 आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में दिया है उसके साथ मैच अगर हो जाता है तो आपका आंसर करेक्ट। तो ये है 2022 का ऑनर्स का कैश फ्लो का क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है, आप लोग इसको देख सकते हो। थैंक यू।